بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا عدل بہت مشہور تھا۔ اس کی نظر میں امیر اور غریب سب برابر تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں لیٹا آرام کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے اسے پکارا۔ بادشاہ بے قرار ہو کر اٹھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ بادشاہ بڑا حیران تھا کہ آخر کون شخص اسے پکار رہا ہے۔ ایک بار پھر اسے آواز آئی، اے بادشاہ میری فریاد سن۔ اب تو بادشاہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کون ہے جو ہم سے فریاد کر رہا ہے؟ پھر آواز آئی، اے بادشاہ ڈرو مت، ہم قوم جنات میں سے ہے۔ میں جنات کا بادشاہ ہوں، تم نیک دل اور عادل بادشاہ ہو اور تمہارے میں سے کسی عامل نے میرے بچے کو قابو کر لیا ہے۔ میں تمہارے پاس فریاد لے کر آیا ہوں کہ میرے بچے کو اس عامل کی قید سے رہائی دلوائی جائے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا، آخر وہ عامل شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جنات کے بادشاہ نے کہا، وہ شخص آپ کا قاضی ہے۔ بادشاہ نے جو یہ سنا تو اسے حیرت ہوئی اور بولا، تم چلے جاؤ، صبح میں قاضی سے بات کروں گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جنات کا بادشاہ سلام کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ پھر مسہری پر لیٹ گیا، اس بارے میں سوچنے لگا اور پھر اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ صبح جب دربار میں پہنچا تو ایک عورت اس کے دربار میں آئی اور بادشاہ سے انصاف کی درخواست کی۔ بادشاہ نے پوچھا، بڑی بی، تم پر کس نے ظلم کیا ہے اور تم قاضی کی عدالت میں کیوں نہیں گئی؟ کیا تمہارے ہمارے قاضی پر اعتبار نہیں؟ یہ سن کر وہ بڑھیا بولی، بادشاہ سلامت، اسی قاضی کے خلاف تو شکایت لے کر آئی ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، اچھا؟ بڑھیا بولی، حضور میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ باغ میں کھیل رہا تھا، اچانک کسی نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی، مارے تکلیف سے اس کا برا حال ہے، میں نے اس کا علاج کروایا لیکن آنکھ ٹھیک نہ ہو سکی، میں قاضی کی عدالت میں فریاد لے کر گئی، جس نے بھی میرے بچے کی آنکھ پھوڑی ہے اسے بھی ایسی ہی سزا دی جائے اور اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے۔ قاضی نے تمام واقعہ تو سن لیا لیکن میرے مجرم کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ آج تنگ آ کر میں آپ کے دربار میں فریاد لے کر آئی ہوں۔ جب بھی اپنے بچے کی آنکھ دیکھتی ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میرے بچے پہ کیے گئے ظلم کا ازالہ نہیں ہو جاتا۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور کہا، بڑی بھی تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ بڑھیا بادشاہ کو دعائیں دیتی چلی گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے قاضی پر پورا بھروسہ تھا، اسے انصاف کے معاملے میں اس سے بہتر منصف اس کے ملک میں کوئی اور شخص نہیں تھا۔ دربار سے اٹھ کر آیا اور شاہی باغ کی طرف چل دیا اور ٹہلتے ہوئے بارے میں غور کرنے لگا۔ آخر بڑی سوچ وچار کے بعد وہ خود ہی قاضی کی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ کو عدالت کا بڑا احترام تھا، اس لیے وہ خود عدالت میں جا کر اس بارے میں خود معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ادھر قاضی کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے اپنے محافظ سے کہا، جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو بھی میری عدالت میں داخل نہ ہونے دیا جائے، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس وقت بادشاہ عدالت کے دروازے پر پہنچا تو محافظ نے اسے اندر نہ جانے دیا۔ اب تو بادشاہ بڑا سٹ پٹایا، اگر وہ چاہتا تو قاضی کو فوراً اس کے عہدے سے ہٹا دیتا، لیکن اس کے دل میں عدالت کا احترام تھا، وہ غلط روایت نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ آخر مایوس ہو کر وہ محل میں واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جنات کے بادشاہ کی آواز آئی، کہنے لگا، اے عادل بادشاہ، میں تیرے کہنے کے مطابق آ گیا ہوں، بتا میرے بیٹے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کے چہرے پر سخت پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ بڑے گھبرا کر لہجے میں بولا، اے جنات کے بادشاہ، مجھے کچھ دن کی مہلت دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قاضی کے قبضے سے تیرے بیٹے کو ضرور چھڑاؤں گا۔ یہ سن کر جنات کا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا اور بادشاہ پھر گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات میں ضرور کوئی مصلحت ہے جو قاضی نے جنات کے بیٹے کو قید کر رکھا ہے۔ ادھر شام کے وقت جب قاضی عدالت سے گھر جانے لگا تو وہ بہت پریشان تھا۔ بھاری قدموں سے جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے اکلوتی بیٹی صفیہ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی، ابا حضور خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ قاضی نے اپنی بیٹی کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ صفیہ اس کی بیٹی یہ سن کر بولی، ابا حضور آپ کی پریشانی بجا ہے، اگر کسی طرح اس بچے کی آنکھ ٹھیک ہو بھی جائے تو پھر اس بڑھیا کو کچھ انعام وغیرہ دے کر رضامند کیا جا سکتا ہے۔ قاضی نے کہا، ہاں بیٹی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس لڑکے کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ باپ بیٹی باتیں کر رہے تھے کہ جنات کا لڑکا بول اٹھا، قاضی صاحب، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں،
इस लड़के ने मुझे बहुत तंग किया था। मैं जब भी इस बाग में पढ़ने के लिए बैठता, वह वहां आकर खेलता कूदता और शोर मचाता। मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ मारा, जिससे उसकी आंखें फूट गई। अगर किसी तरह आबे नीलम हासिल कर लिया जाए तो उसे एक ही कतरे से लड़के की बिनाई लौट आएगी और वह भला चंगा हो जाएगा। साफिया ने पूछा, ऐ जिनजादे, आबे नीलम कहाँ से मिल सकता है? जिनजादे ने कहा, कोई काफ के एक इलाके में नीलम परी की हुकूमत है। उसके महल के बराबर जो बाग है, उसके दरमियान एक बड़ा खूबसूरत तालाब है। तालाब में नीले रंग के बड़े बड़े कमल के फूल खिले हैं। भी चांदनी में रात को जब चांद उस तालाब के ऊपर से गुजरता है तो उसकी रोशनी से कमल के फूल तालाब में छुप जाते हैं, और जिस वक्त सुबह होती है वह दोबारा पानी पर आते हैं। उस वक्त फूलों के अंदर जो पानी मौजूद होता है उसे आबे नीलम कहते हैं, और जो सूरज के निकलने के बाद दिन में खुश्क हो जाता है। यह अमल चाँद की 14वीं की तारीखवी से शुरू होता है। आज रात की 14वीं तारीख है। अगर आप मुझे रिहाई दे तो मैं सुबह होने तक आबे नीलम आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जिनजादे की यह बात सुनकर काजी और उसकी बेटी साफिया सोच में पड़ गई। जिनजादे पर एतबार किया जाए या नहीं। आखिर मजबूर होकर उन्होंने जिनजादे को आजाद कर दिया। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण काजी के मकान पर पड़ी तो वह और उसकी बेटी सफिया जिनजादे का बड़ी बेचैनी से इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि सारा दिन बीत गया, लेकिन वह जिनजादा वापस न लौटा। इसी वजह से काजी अदालत भी नहीं गया। अब तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वह अपनी बेटी साफिया से कहने लगा, बेटी, हमने उस जिन पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की। साफिया बोली, अब्बा जान, मेरा दिल गवाही देता है कि जिनजादे ने जो कुछ कहा वह सही था, झूठ ना था, मगर वह जरूर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। काजी बोला, हो सकता है बेटी तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह बताओ मैं क्या करूं? बादशाह इसी बारे में कल मुझसे मिलने आया था। कल तो मैंने उसे टाल दिया था, आज भी सारा दिन गुजर गया, लेकिन कल अगर बादशाह मुझसे मिलने आया या मुझे दरबार में तलब कर लिया तो मैं क्या जवाब दूं? काजी की बेटी, जो बहुत ज़हीन थी और बहादुर भी थी, बोली, अब्बा जान, आप कहा करते हैं ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, तो फिर मुझ पर भरोसा रखे। मैं कोहिकाफ से आबे नीलम हासिल करके जल्दी लौट आऊंगी। बस अब मुझे खुशी खुशी आप इजाजत दे। वह काजी लाजवाब हो गया और उसने अपनी बेटी को इजाजत दे दी। सफिया बड़े इत्मीनान से रात में सोई और दूसरे दिन सुबह ही सुबह मर्दाना वेश बदलकर एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर कोहिकाफ की तरफ चल दी। उसे यह पता न था कि कोहिकाफ किस सिमत है, लेकिन वह खुदा के भरोसे पर घर से निकल पड़ी थी। उसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था, एक मत में दौड़ा जा रहा था, यहाँ तक कि दोपहर हो गई, सूरज सर पर आ गया। गर्मी की तपिश से घोड़े पसीने में शराबोर हो गए। आफिया भी थकावट और प्यास महसूस कर रही थी। अगर कोई बात होती तो वह इतना दुश्वार सफर कभी ना करती, लेकिन उसे अपने बाप की इज्जत का एहसास था। यही वजह थी कि वह थकावट और भूख की परवाह किए बगैर सफर जारी रखे हुए थी। लेकिन उसका घोड़ा तो बेजुबान था, कहाँ तक दौड़ता। उसकी रफ्तार आहिस्ता होती जा रही थी। इस बात को शहजादी ने भी महसूस कर लिया था। उसके घोड़े की लगाम खींच ली और एक सायेदार दरख्त के नीचे उसे बांध दिया और खुद भी आराम करने की गर्ज से दरख्त के नीचे लेट गई। अभी कुछ देर ही गुजरे थे कि उसे घोड़े की हिनहाट सुनाई दी और वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या देखती है कि एक स्याह रंग का नाग घोड़े को डसने के बाद एक बिल में घुस रहा है और घोड़ा जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा है और उसके मुंह से झाग बह रहे हैं। घोड़े ने देखते ही देखते उसके सामने दम तोड़ दिया। इस बात का सफिया को बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वह पैदल आगे चल दी। सूरज की गर्मी में इजाफा हो रहा था। वह बड़ी हौसलामंद थी और बहादुर थी। उसकी परवरिश लड़कों की तरह हुई थी। भला मुसीबत से वह हिम्मत कैसे हारती? वह बराबर आगे बढ़ती रही। दरमियान में एक दरिया हायल हुआ, जिसका दूसरा किनारा इतने फासले पर था कि बगैर कश्ती दरिया को पार करना बड़ा मुश्किल था। अब तो वह परेशान हो गई कि अब वह क्या करे। अचानक एक जिन उसके सामने आ गया। वह बड़ी भयानक शक्ल का था, जिसका कद भी कोई 15-20 फीट से कम न था। उस जिन को देखकर सफिया लम्हा भर को तो घबरा गई, लेकिन फिर फौरन ही उसने खुद पर काबू पा लिया। लेकिन वह जिन उसके साथ बड़ी शफकत और मोहब्बत से पेश आया। दरअसल यह वही जिन्नात का बादशाह था जिसके लड़के को साफिया के बाप यानी काजी ने कैद कर लिया था, जिसे वहां न लौटने पर सफिया इस मुहिम पर रवाना हुई थी। जिन ने कहा, ऐ बहादुर लड़की, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो। इस बारे में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं उस जिन का बाप हूँ जो आबे नीलम हासिल करने के लिए गया था और अब नीलम की परी की कैद में है। अगर वह जल्दबाजी से काम ना लेता और मुझसे मिल लेता तो मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी देता।
उस अंगूठी की वजह से नीलम परी खुद ही उसे आबे नीलम हासिल करने की इजाजत दे देती। अब तुम यह अंगूठी पहन लो, एक तो इसकी बरकत से जो कुछ तुम चाहोगी हो जाएगा, दूसरे नीलम परी की कैद से मेरे बेटे को भी आजाद करवा लोगी। साफिया ने जिन बादशाह से अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली। अब तो उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ। जिन बादशाह ने उससे कहा, अब आंखें बंद कर लो और नीलम परी के महल में पहुंचने का इरादा करो। साफिया ने जिन बादशाह के कहने के मुताबिक अपनी आंखें बंद कर ली। अब जो उसने आंखें खोली तो सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत महल में मौजूद थी, जिसे देखकर बहुत सी परियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इतने में नीलम परी भी वहां आ गई। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर जैसे ही उसकी निगाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर पड़ी, वह एकदम नरम पड़ गई और शफकत और मोहब्बत से पूछने लगी, ए अच्छी लड़की, तुम हमारे पास किस लिए आई हो? साफिया ने अपने आने की गर्ज उसे बताई। नीलम परी ने मुहाफिज परियों को हुक्म दिया कि उस जिनजादे को रिहा करके ले आओ। फिर थोड़ी देर में वह जिनजादा भी वहां ले आया गया। चांद की 14वीं रात के खासे दिन थे, लिहाजा इतने दिन नीलम परी ने उन दोनों को अपने पास मेहमान रखा और उनको खूब आओ भगत की। और जिस रात चांद की 14वीं तारीख थी, नीलम परी ने एक छोटी सी सुराही में खुद ही आबे नीलम हासिल किया और सुबह साफिया की खिदमत में पेश कर दिया। अब उन लोगों का रहना वहां फजूल था। वह नीलम परी से इजाजत लेकर वापस हुए। उधर साफिया का बाप काजी बहुत परेशान था। बादशाह की तरफ से भी हुक्म आ चुका था कि वह जल्दी से उसके दरबार में हाजिर होकर सूरत हाल से आगाह करे। अब जो काजी ने साफिया और जिनजादे को देखा तो बहुत खुश हुआ। साफिया ने मुख्तसर तौर पर सारा किस्सा अपने बाप को कह सुनाया। काजी ने मुलाजिमों को भेजकर फौरन ही उस बुढ़िया और उस लड़के को बुला भेजा। जब वो दोनों उसके पास आ गए तो काजी ने आबे नीलम के चंद खतरे उस लड़के की आंख में डाल दिए, जिससे फौरन उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी बिनाई लौट आई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। काजी ने कहा, बरीबी, अब तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रही जिसने तुम्हारे बच्चे की आंख फोड़ी थी। बुढ़िया ने कहा, नहीं जनाब, अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे बच्चे की आंख ठीक हो गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी वहां से चले गए। यह देखकर काजी ने जिनजादे से कहा, अब तुम जा सकते हो और यह अंगूठी लेते जाओ। अपने बाप को मेरी तरफ से सलाम कहना और मेरा शुक्रिया कहना। जिनजादा अंगूठी लेकर चला गया। दूसरे दिन काजी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और सारा हाल कह सुनाया। बादशाह ने कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था कि आपके इस रवैये की जरूर कोई वजह है। मुझे आपकी बहादुर बेटी पर भी बड़ा फख्र है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं। काजी ने यह सुनकर कहा, बादशाह सलामत, यह मेरी और मेरी बेटी की इज्जत अफजाई होगी। और फिर जो दिन साफिया और शहजादे की शादी का तय पाया, उससे कुछ दिन पहले जिन्नात का बादशाह उस बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ऐ बादशाह, तुम अपने बेटे की बारात लेकर काजी के घर नहीं बल्कि मेरे घर आना होगा। बादशाह ने यह बात मंजूर कर ली। इधर जिन्नात का बादशाह काजी और उसकी बेटी को अपने गांव ले गया। फिर वह दिन भी आ गया जब बादशाह बारात लेकर जिन्नात के गांव पहुंचा। वहां पर ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ कि क्या कोई बादशाह करता। ऐसे ऐसे तोहफे पेश किए गए कि बादशाह उसके साथी हैरान रह गए। साफिया और जिन्नात की बस्ती से डोली में बैठकर बादशाह के महल में पहुंची और सब हंसी खुशी रहने लगे। मोहतरम हजरात, मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।